what's the one decision that you have made till now for you and your family that you're proud of? जहाँ तुम्हें लगा that you are the difference. Deciding one day that I'll change this. मैंने decide कर लिया था कि I'll do everything, but I'll change the financial condition of my family. That was a very firm decision. I was like कि I'll keep everything aside. मैंने बहुत टाइम तक नौकरी करी जो मैं नहीं करना चाहता था और बहुत ऑड जॉब्स किए just to make it, even though कुछ चीज़ें काम करती थी, कुछ चीज़ें नहीं करती थी, कहीं से आते थे पैसे, कहीं से नहीं आते थे, लेकिन that firm decision that first I'll figure this out, figure the money part of my family, then I'll figure everything else. पहले ये सॉर्ट चाहिए, तो making money the priority was the best decision, I think. कब हुआ था ये? Do you remember? Yeah, I was 18. We used to live in a very bad government quarter. The house was terrible. It didn't have natural light. My mom is a very nature-loving person. Like she loves natural lights. She loves like धूप सेकना और ये सब चीज़ें, और उस घर में हो नहीं पाता था. ये बहुत ख़राब घर था वो. And we spent like 11 years of our life in a very bad government quarter. So I used to be like, I have to change this. And then like 18 years I decided that I'll change everything, and I did it. सेम एक्चुअली घर का बहुत बड़ा रीज़न मेरे लिए ये रहा है कि आई थिंक बहुत सारे साल हमने इसी के लिए पापा ने मम्मी ने स्पेंड कर दिया कि अब उन्होंने बना दिया, बच्चे ही आगे ठीक करेंगे. एंड आई थिंक मैंने आसपास अपने नेबरहुड में देखा कि यार सबके घर की मतलब बिल्डिंग्स बढ़ चुकी है और अब वो सूरज नहीं दिख रहा है, मतलब वो धूप नहीं आ रही है अभी, है ना. तो ये मेरे लिए आई थिंक, और अभी फाइनली जो भी मैंने किया था, फाइनली अभी मैंने ये स्टेप किया कि मैं अभी रेनोवेट करूंगी. एंड आई थिंक अभी स्टार्ट ही हो रहा है रेनोवेशन अगले मंथ से. मुझे नहीं पता कि मैंने अभी कर पाया है नहीं, अब स्टिल वो पता चलेगा कि कितना खर्चा होगा अभी, बट स्टिल मैंने डिसीजन ले लिया कि अभी हम लोग रेनोवेट कर रहे हैं. वो मैंने अपने पापा को बोल के कि मैं करूंगी. मान गए तुम्हारे पापा वैसे? वो तो बोले कब सोच रहे हैं कि कब होगा, बट वो उनको भी भरोसा नहीं हो रहा. वो बोले कि क्योंकि उनमें वो, मुझे लगता है ना कि वो स्ट्रेंथ नहीं थी कि अकेले वो डिसीजन नहीं ले सकते थे. बट जब मैंने बोला कि मैं करती हूँ ना स्टार्ट, देन ही हो जाएगा, फिर कर लेंगे साथ में. कितनी प्यारी बात है ना, कभी कभी पेरेंट्स को खुद एक्चुअली आप भरोसा दिलाते हो कि यू नो इवन पेरेंट्स समटाइम्स फील अलोन इन दिस प्रोसेस और वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते. हम तो चलो फिर भी यू नो वी आर फार मोर एक्सप्रेसिव देन आवर पेरेंट्स. For me it is, I think, so I have a skin condition named vitiligo, and my dad and my mom put in almost 10 years of their life into it, with doing different therapies and medicines and stuff like that. There was different food made at home. Mom had so much of work, extra work. Dad, he used to balance his office. Like when I was in school, he used to go to office. When I used to come back, he used to immediately take me to the doctor. We used to sit there for like 6 hours in the line. You know, like we did that for almost 8 to 9 years. And he would never stop it until I would tell him, because for him it was like I tried the best to, you know, cure this. But there was no scientific cure to vitiligo. So I think the best decision was when I went to him. I was in the 8th standard and I told him, Dad, can we just stop this, you know, and let's make life easier for all of us. And I think that was the best day of my life and their life, because we all were living freely. No one had any issues of कि आस्था को यही खाना, ये नहीं खा सकती है. Dad को ये नहीं issue था कि अभी I have to go to the doctor, I have to spend this money on this medicine. Like why? If there is no cure to it, I think like you literally live only once, so just like enjoy yourself and don't really stress about something which is not possible. So I think that was the best decision for all of us. वाह यार, वाह. How did you take it at 8th standard? That's such a beautiful. I mean, like, I don't know. My dad just told me, like he was just like he was chilling at home or something, and I went to Dad and I was like, Dad, can we stop this? Like we're all tired of this. Like, you know, literally my dad and I, we used to travel to like different like places all over India. You name the temple, I have been there. We used to like wake up at like 4. Like there was this like someone, and at that time whatever you tell the parent, that parent will believe it. So someone had told him to, you know, literally you have to sit on your own, make haldi and put it on her like white spots and it will get resolved. So every morning he used to wake up, he used to make the haldi ka that crushed thing on his own, he used to put it on my skin, and then when it used to dry up, it used to be very hard. So he used to feel bad for that also, कि my daughter was going through this. But for him it was like whatever, even if God tells me ना कि तुम इधर जाओ, I will go there because I want her to be fine. So I think that was the best decision. Unbelievable that you made it at such an early age. Wow, that's incredible. Yeah. I'm sure they're so proud of you. Thank you.
How do I top all of this? I'm just भगवान भला करे मैं इसके इधर बैठा था भाई. हाँ यार. Oh God. टॉप नहीं करना है यार, कंपटीशन थोड़ा है. इसके बाद तो ना कैमरे भी बंद कर दिए. कह रहे मिल गया बस. क्लाइंट भी चले गए. कह रहे मिल गया, अपना बाइट मिल गई. चलो करते रहेंगे आपस में ये लोग अपना. Because all three of their answers were so good. मेरा ऐसा कोई डिसीजन भाई सोच रहे बैठ के यार मैंने कोई उखाड़ा ही नहीं है, कोई ऐसा डिसीजन नहीं. तुम्हें पता ना तुम 3 साल से काम कर रही हो. यू आर आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू योर फैमिली सिंस यू आर लाइक अ चाइल्ड. You know, 3 साल में हम मट्टी खा रहे थे भाई. भाई and I love how she's like मैं किसे टॉप करूं. मुझे पता है, I know you so well. I know you have been, because you had a single mother and you had both you and your sister. I know how much you have done for your family. How can you say that? कमाल लड़की है. फुटेज भी खाएंगे. हीरोइन वाला है ना. यस हल्का है. एक एहसास तो है आप में भी. मेरे घर पे एक पापा की बाइक हुआ करती थी एंड एक टाइम मुझे याद है कि सडनली एक दिन वो बाइक गई और बहुत कूल बाइक थी. मुझे याद नहीं कौन से ब्रांड की थी, बट बहुत कूल बाइक थी. एंड सडनली अगले दिन एक स्कूटर आ गया एंड मैं वही पूछा ये बाइक क्यों गई और स्कूटर क्यों आया. मतलब ये कोई उल्टा लॉजिक लग रहा है. कूलनेस में तो बाइक बाद में आती है एटसेट्रा. एंड देन माय मदर टोल्ड मी अरे पापा को भेजने थे पैसे अपने पेरेंट्स को और हमारे पास उतने पैसे हैं नहीं तो बाइक बेचनी पड़ी और स्कूटर सस्ता होता है. अच्छा ऐसा होता है क्या. सो टिल देन आई डिड नॉट नो दैट मनी एक्चुअली इन्फॉर्म्स सो मच ऑफ लाइफ डिसीजंस. एंड ये मैं मतलब 4-5 साल का हूँगा बट मुझे अभी भी याद है कि दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग्स दैट आई हैड कि पैसे से चीज़ें आती हैं जाती हैं. Life changes, your quality of life changes. So what was your first understanding of money? There was a word I used to hear a lot घर में, hand to mouth. बहुत सुनती थी मैं ये और मुझे समझ में नहीं आता था होता क्या है hand to mouth. My mom has raised me and my sister all alone. So she was the only one who was actually figuring the finances out. She was the one who was earning and I was from whatever I could बचपन में could help her. तो वो मैं बहुत सुनती थी hand to mouth. तो तब मुझे realize होने लगता था कि okay this is money is important. Even today, touch wood, like our situation and everything is touch wood decent, good. But today, even today वो 200 रुपए का वो करती हैं हिसाब because she's so inherently so worried and so like वो her muscle memory is to just save money. I've seen her like save that kind of money, take the bus instead of an auto, all those things. So I think from there तो I understood कि हाँ वो hand to mouth है और वो एक financial insecurity है वो सब है. But official understanding मुझे काफी late आई. I'm happy to hear that. Obviously, that you're all in a good place right now. What about you guys? But I think the first time when I earned money, I think it was in office or something, and then I went somewhere and I think like 1,000 rupees got stolen or something, and I came home and I was crying a lot. So like my parents asked like what happened. I was like 1,000 rupees, like it just like got stolen. So they were like it's okay, it's fine, and I was like no, like it was like my hard-earned money, like that's when I think I properly realized like what it feels like, because otherwise it was just like 10 rupees, हाँ चलेगा, let's just go buy this. What I found so interesting in that is कि actually पहली बार आपको वैल्यू की पैसे की वैल्यू तब समझ आती है जब आपसे कोई चोरी कर ले. Yeah. If someone takes your hard earned money, then you realize it's hard earned. तब तक तो जो खुद स्पेंड हो रहा था तो you don't realize कि hard earned है कि नहीं है. तो मेरा रिलेशनशिप तो ये था, मेरी मम ऑफ कोर्स सिंगल मदर है, तो मेरे घर में मैं था, मेरी बड़ी बहन थी और मम्मी थी. तो घर का मेरा मनी से रिलेशनशिप, घर का स्टेटस कोई यही था कि नहीं है पैसे, क्योंकि सरकारी और नौकरी में जो लोग रहते हैं उनका, क्योंकि वो मन टू मन चलते हैं, तो सेविंग का कोई कल्चर है नहीं. तो मेरी मम्मी का था कि ऑफ कोर्स फाइनेंशियल चीज़ें बहुत खराब थी, बट मम्मी का था कि बच्चे स्कूल अच्छे जाएंगे. मतलब मेरी मम्मी की तनख्वाही तब 4-5 हज़ार रुपये होती थी और 800-800 रुपये फीस हम दोनों की और एवरीथिंग. लेकिन अब मैं जिस स्कूल में जाता था वहाँ तो अमीर के बच्चे आते थे. तो फॉर अ लॉन्ग टाइम ऐसा रियलाइज नहीं होता आपको स्कूल्स में, एंड उनको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपके बगल में आपका दोस्त है वो किसी भी इकोनॉमिक स्टाटा से आता है, यू डोंट माइंड. बट व्हेन यू ग्रो अप, लाइक आप 7th-8th में हो जाते हो, यू स्टार्ट गोइंग आउट एंड हैंगिंग आउट विद योर फ्रेंड्स. तो यू रियलाइज कि आपके ग्रुप में 4 लोग हैं और 3 का बर्थडे पिज्जा हट में, डोमिनोज में, मैकडॉनल्ड्स में बन रहा है. तो फर्स्ट टाइम आई रियलाइज जेन्युइनली नो, हम 4 लोग, भोपाल में पहला मॉल खुला था, एवरीबॉडी वेंट टू द मॉल, मैकडॉनल्ड्स में होके आए, उसके साथ फोटो खिंचा के वो अंकल, क्या है उसका नाम, डोनाल्ड मैकडोनाल्ड, वो अंकल के साथ वो भोपाल में आ गया. वो अंकल हमारे बाहर मैकडॉनल्ड्स में डीबी में, तो हम लोग सब फ्रेंड्स लोग 4 लोग गए साथ में डीबी, एंड उनने जो मंगाया और मैंने जो मंगाया
उस दिन मुझे क्लास डिफरेंस पता चला। फिर मेरा जीवन में मोटो रहा कि मैंने कहा सबसे पहले पैसे सॉर्ट किए जाएंगे, उसके बाद जीवन देखा जाएगा। तो मेरा ये रिलेशनशिप था, दैट आई मस्ट हैव बीन इन 7th और 8th। देन आई रियलाइज्ड ओके लाइफ इज डिफरेंट। जिंदगी में अलग अलग लोगों की अलग अलग जिंदगी होती है। Correct. और उसका बहुत ज्यादा पैसों से लेना देना। मेरा भी एक्चुअली सेम ही, मैं तो मेरे लाइफ में आया गुल्लक से, वो जो मिट्टी के गुल्लक में जो हम लोग पैसे रखते थे, क्योंकि मुझे पता था कि पापा ने हमेशा ना मुझे ये समझाया कि अगर तुम्हें कुछ भी लेना है तो सेव करो, पैसे जमा करो एंड देन लो। क्योंकि वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अच्छा पापा ये चाहिए मुझे एंड देन ही ब्रिंग्स पैसे लेकर आएंगे, वो मेरे लिए कभी भी ऐसा नहीं हुआ। तो यही था, मैंने मम्मी को देखा था घर में किचन में ऐसे स्टील के या बॉर्नविटा के डिब्बों में पैसे भरते हुए या कुछ कुछ बचाते हुए। तो मुझे भी ये तो मेरे अंदर आ गया था कि सेव करना है। तो जो भी लंच में के लिए कभी कभी मम्मी पैसे दे दी थी तो उसको सेव किया, गुल्लक में डाला। एंड देन कभी कभी ऐसा होता था कि वो मुझे ना गुल्लक से इतना ज्यादा फैसिनेशन था ना, मतलब वो कुछ वो आते थे लॉक वाले, तो उसमें ना तुरंत पैसे निकल जाते थे। तो वो वाले नहीं चाहिए, वो मिट्टी वाले आते थे, उसमें पैसे निकलना मुश्किल था। तो वो हम लोगों लॉन्ग टाइम तक सेविंग चलती थी मेरी। तो और जब वो फूटता था तो वो खुशी जो मिलती थी कि अरे इतना सेव कर लिया है, वाह यार। मेरा तो ये आप लोगों को सुन के इनफैक्ट एक मेमोरी जो आ रही है मुझे, मैं था रायन इंटरनेशनल में एंड इट वाज दिल्ली में 1 साल पढ़ा हूँ मैं रायन इंटरनेशनल में गया था। एंड अगेन वहाँ पर सारे एक स्टार्टा के लोग आते हैं और मैं उस स्टार्टा में नहीं था, मुझे जो पता नहीं था कि ज़माने अंटिल किसी का बर्थडे आया और वो दुबई से चॉकलेट लाए, ठीक है ना। तो वो मतलब फॉरेन के चॉकलेट आए वहाँ पे। मुझे ये था कि ये चॉकलेट मुझे कभी, बिकॉज दैट गाय ऑल्सो गिविंग, ही वाज गिविंग इट ऑलमोस्ट इन अ वे दैट मतलब एहसान कर रहा हूँ मैं, ये देखो तुम्हारे लिए दुबई से चॉकलेट। आई डोंट रिमेंबर व्हाट इट वाज, वेदर इट वाज द फैक्ट दैट आई वांटेड 2 चॉकलेट्स और इट वाज द फैक्ट दैट आई वाज लाइक ये क्यों, मतलब फॉरेन का चॉकलेट मेरे पास नहीं है, बट मैंने एक और उठा लिया, ठीक है, उसके बैग से। और उसके अपेरेंटली लिमिटेड चॉकलेट्स थे, सो देयर वाज ओनली लाइक एक्स अमाउंट ऑफ चॉकलेट्स एंड देन व्हेन द चॉकलेट्स गॉट ओवर उन्होंने कहा कि एक तो मिसिंग है। और फिर टीचर ने पूरा एक मिसिंग कैसे हो सकता है, यू नो, तो somebody has taken 2 and then the teacher and she asked कि किसने लिया है। मुझे अभी भी याद है, मतलब मैं क्यों बोलूं मैंने लिया है, मैं कह रहा था कि पूछेंगे फिर नहीं होगा तो बोलेगा किसने गंदी बात की, बट she did a back check। हर इंसान के बैग करने का, और क्या निकली क्यों नहीं निकली। So then they came to me and then मैं तो बैग नहीं दे रहा, इसी वजह से मैंने कहा मैं बैग नहीं दूंगा, दिस इज प्राइवेसी इंट्रूजन। 5 साल का लड़का बोल रहा है, फिर क्या, फिर समझ आ गया उनको कि इसी के बैग में फिर निकाली बैग में। फिर वहां से पेरेंट्स को बुलाया मुझे और मतलब उस ऐसे करके कि तुम्हारा बेटा चोरी करता है, चोरी की मतलब एक एक्स्ट्रा चॉकलेट दिया, इसमें चोरी का क्या है। एंड सच अ स्मॉल थिंग, मतलब प्रिविलेज अपॉर्चुनिटी सारी कॉन्सेप्ट वहीं शुरू हो जाते हैं। इवेंचुअली वी आल्सो एंडेड अप गोइंग टू द मिडिल ईस्ट, सो आई वन। बट आपको पता चला कि वो दुबई चॉकलेट स्कैम है। हां मतलब वो जो भी है ठीक है, वो नहीं बताएंगे यहाँ पे हम लोग, बट ठीक है। Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and share.